Hey guys, what is up? I was just recently browsing through one of our clients' ad accounts and one of his ad accounts, and we observed that we spent 70 lakhs, very close to touching 1 crore in ad spend in one of the Facebook ad accounts that we manage. So आज के वीडियो में मैं आपसे उसी से जो मैंने lessons learn करे हैं, कुछ important lessons वो मैं share करूँगा. And as of today, we are spending roughly about 2 lakhs per week. Across the portfolio of clients that we have. So ये hands-on experience से ही lessons आ रहे हैं on advertising. The lesson I want to share with you today is more or less on scalability of a funnel, or you can say a funnel through advertising. So couple of lessons. Lesson number 1 मैं ये share करना चाहता हूँ कि decide हमें ये करना जरूरी है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है जो हम फॉलो कर रहे हैं, क्या हमें वो माइक्रो नीश जाना अलाउ करता है, एंड तभी माइक्रो नीश जाना है. नंबर 1. नंबर 2, माइक्रो नीश जरूरी नहीं होता जाना. It's a little unconventional, okay? And I will be sharing case studies, and पिछले 2 साल से चुपचाप अंडरग्राउंड होके मैंने काम किया है. Okay, a lot of things that people teach, I observed, I consumed, and I implemented. I failed countless times, and then I made things happen. So I've documented everything, and I have a lot of content that I will drop. But अभी के लिए सुन लो, पहले एक वीडियो जाके देख लो, तो आपको पता है कि मैं अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही बात करता हूँ. I don't talk about out of just bookish knowledge. So micro niche is not always the secret, okay? If you have a business model that can afford to run on talking to few people, then it's okay. So जैसे अगर आप B2B कर रहे हो, right? और आप ads अगर चला रहे हो और आप B2B कर रहे हो, या फिर जिसमें आपका जो टिकट साइज है वो हाई है, या फिर आप हाई टिकट मॉडल कर रहे हो, then probably micro niche is fine. बट यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को माइक्रो निश में कितना माइक्रो जाना है. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस दैट एडवर्टाइजिंग is a game of math, okay? If you are going to advertise going very micro, जिस प्रोडक्ट की रीच ही बहुत कम है, तो आपका कॉस्ट ज्यादा आएगा ही आएगा और आप कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे. यू विल एक्चुअली फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू बिकम प्रॉफिटेबल, बिकॉज मैथ ही नहीं बनती, साइंस ही नहीं बनती. सो द फर्स्ट लेसन इज दैट माइक्रो निश इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन, ओके? लेट मी टेल यू दैट. सो व्हेन इज माइक्रो निश अ सोल्यूशन? Number 1, if the market is very much sophisticated, which means there's a lot of competition, and even if you feel like, or you can observe through your market research, that even when you micro niche your positioning, you will still attract a good chunk of percentage of the market, then go ahead and do micro niche. Otherwise, micro niche is not the way out. So that's number 1. Next thing I want to share with you on scalability is the opportunity of offering OTOs and order bumps, one-time offers, upsells, and order bumps. And I don't understand why people don't do that. Recently हमने किसी के funnel में OTO डाला, one-time offer, and वो हमने डाला thank you page पे. The price of that OTO is 2,000 rupees. The front-end product that the client is selling is worth 100 rupees. 200 rupees. So हमने 10x price किया upsell का, okay? As of today, the take rate of the OTO, which is the upsell, is roughly 12%. Okay. So imagine out of 100, 12 people who are also buying a 200 rupee product are also buying out of 100 people, 12 people are also buying the 2,000 rupee product. Of course, अभी fine tune करूंगा मैं इसको, और I'll try to bring the conversions as high as possible. But what I'm saying is कि जब आप स्केल करते हो किसी फनल को, किसी को रीच, जब हमने एड अकाउंट्स इनके इतने पैसे स्पेंड करते हैं क्लाइंट्स के, तो मुझे ये समझ आता है कि जब स्केल कर रहे हो किसी बिजनेस को, ग्रो कर रहे हो, तो बिजनेस का गोल क्या है. सो वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, एंड देन एट द सेम टाइम ये भी डिफाइन होना चाहिए कि हम कब माइक्रो नीश जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, और अगर नहीं जा रहे तो हम अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे. और मार्केट की सोफिस्टिकेशन, विच मीन्स कि मार्केट में कितना कंपटीशन है, उस चीज पे ये चीज डिपेंड करती है कि मुझे, और अगर मैं माइक्रो नीश करूं भी या ना करूं. सो स्केलेबिलिटी के लिए ना बहुत सारी बातें हैं जो आई वांट टू रियली शेयर, बट इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल लेसन देना चाहता हूं. सो स्केलेबिलिटी, माइक्रो निश इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन. नंबर 2,
और हाँ, मैं एक और बात बताता हूँ माइक्रो निश के बारे में. माइक्रो निश इज नॉट ओनली कॉलिंग आउट एन एवटार. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, आप माइक्रो निश तब भी करते हो जब आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. I see people making this mistake. They forget it when they are executing things. Micro niche is not just calling out an avatar. When you call out a specific problem, even that is micro niching. So, अगर micro niche कर रहे हो और avatar में लिमिट लग रहा है आपको या स्कोप नहीं लग रहा है तो मत करो सिर्फ avatar से. प्रॉब्लम कॉल आउट करो, वो स्पेसिफिक है तो that in itself is going to put you out there like in a micro niche kind of positioning, right? So yeah. And other level of experience that I want to share, and then we'll call it off because मुझे gym जाना है. And yeah, so the next thing I want to share with you is about offer creation. Okay, understand this. जब एक ऑफर बनाते हो ना, ऑफर प्रोडक्ट जब पैकेज करते हो उसको, तो एक जो ऑफर, एक तो लेवल, एक चीज होती है ऑफर की, जो होती है उसकी परसेप्शन, the perception of the value, the perception of the offer. एक तो वो होती है. परसेप्शन क्रिएट होती है पैकेजिंग से. किससे? पैकेजिंग से. अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं. इफ यू नो एलेक्स हरमोजी की जर्नी अगर आप जानते हो तो आपको पता है कि उन्होंने जिम लॉन्च से अपनी पहली सक्सेस अचीव करी थी. अब मुझे एक चीज क्लियरली समझाओ ये बात. इमेजिन करो एलेक्स हरमोजी डजंट लुक द वे ही डज. इमेजिन, ओके, हाइपोथेटिकली, लेट्स इमेजिन ही इज लाइक फैट, राइट, एंड ही इज नॉट फिट एंड ही इज नॉट मस्कुलर. एंड नाउ थिंक, अगर वो ऐसा होता तो क्या वो बिल्ड कर पाते अपना जिम लॉन्च? नहीं ना. मतलब बैठती नहीं है ना बात, अगर सोचो तो. एंड इफ यू डोंट नो एलेक्स हरमोजी, गूगल हिम, यू विल फाइंड हिम आउट. एंड सिमिलरली हर प्रोडक्ट जो सक्सेसफुल है उसकी एक एसोसिएशन है पैकेजिंग से. और वो एसोसिएशन जब आप देखोगे ना, कि जैसे आप एप्पल के बारे में सोचोगे या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे, सो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ सम सेंस ऑफ character or personality in that product. That in itself creates a perception of the value you will get when you buy that product or service. Very important lesson. So इसीलिए जब लोग मुझे कहते हैं ना, हाँ कर दो, हाँ ओके, यूनिवर्स लव स्पीड, तेज चलो, बट थोड़ी मेहनत ज्यादा करो यार. जैसे कि लाइक अगर आप ज्यादा काम करोगे अपने एड्स पे, अच्छी एड्स लिखने पे, लैंडिंग पेज को थोड़ा सा बेटर डिजाइन करने पे और इमेजेस को बेटर एडिट करने में, तो रिजल्ट्स आते हैं गाइस, राइट? लाइक क्वालिटी विल ऑलवेज, क्वालिटी एट हायर क्वांटिटी इज व्हाट इज गोइंग टू गेट यू द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू डिजायर. सो सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी विद क्वांटिटी. और वी डोंट वांट टू बी सो सेल्फ सेंटर्ड कि हम अपना काम कर रहे हैं और हमें खुद ही को देख नहीं रहे हैं कि यार हम इतना एवरेज लेवल काम है हमारा, इट डजंट रिफ्लेक्ट इन आवर मार्केटिंग. तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे, राइट? मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में. तो ये कुछ चीजें होती है. सो ऑफर के लिए परसेप्शन ऑफ वैल्यू एक चीज होती है ऑफर के लिए. सो परसेप्शन क्रिएट करना, परसेप्शन उसकी पैकेजिंग पर डिपेंड करता है. और अगर आप पर्सनल ब्रांड ड्रिवन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या सर्विस सेल कर रहे हो, जैसे कि कोचिंग, कोर्सेज, एजेंसी सर्विस, अगर पर्सनल ब्रांड ड्रिवन प्रोडक्ट या सर्विस है, then you have to work on yourself. And unfortunately or fortunately, that is the truth. There you go, I said it. Don't hate me for it. मेरा सिर्फ काम आपको सच बोलना है. So that's one, perception of value. It has to be high. And आप सोचो कि perception of value कैसे create कर सकते हो. अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, दूसरी, और फिर हम बाय बाय करते हैं, ओके? काफी मार्केटियर्स जब ये perception of value वाली चीज समझ जाते हैं ना, entrepreneurs, वो क्या करते हैं, वो परसेप्शन ऑफ वैल्यू पे ही फंस जाते हैं. वो खुद पे काम ही नहीं करते, तो वो सिर्फ परसेप्शन पे ही काम करते हैं, विच मीन्स वो पैकेज ही करते रहते हैं. सो बिग बोल्ड प्रोमिसेस देंगे, गारंटीज दे देंगे, राइट? लैंडिंग पेज के लिए डिजाइनर्स हायर कर लेंगे, हमारी जैसी एजेंसी ले आएंगे. सो दे विल स्पेंड एवरीथिंग, their टाइम, मनी, एनर्जी ऑन द पैकेजिंग ओनली, जस्ट टू इंक्रीज द परसेप्शन ऑफ वैल्यू. बट प्रोडक्ट पे काम नहीं करते, राइट? जब कोई, इसीलिए उनके रिपीट बायर्स नहीं आते. सो द सेकंड part of offer creation is that not just perception of value is important, but even the second like half of the offer creation, which is what? Which is delivering what you're promising, or actually delivering more than you're promising, like under talking and over delivering.
There are techniques and tactics to it that I used in different funnels and even in my business. But what I'm saying is, I hope it is very clear, simple to understand, right? कि हमें सिर्फ ऑफर बनाना नहीं है, हमें जो बोलना है ना वो डिलीवर भी करना है. Okay, so जो नहीं कर रहा है उसको करने तो अच्छी बात है. These people are creating a market for you. So very good. There's an area of opportunity, and I'll tell you, according to me, the game is all about diving in the red ocean. The game is not about diving in or trying to find a blue ocean. The game is dive in the red ocean or in a red ocean and create your own blue ocean within that red ocean. That is where the game is, because I feel that it's actually very easy to do something better. Instead of trying to create something unique or new, it is easier to do something better than someone else. So if you see that there is a red ocean, that means there is a humongous amount of competition out there. Just go out there, see what the majority of Janta is offering, and just start doing it better. That's the way I look at it. So presentation better kar do, fulfillment better kar do, service better kar do, customer experience better kar do, and धीरे धीरे your business will grow. Yeah. So ये कुछ lessons है after spending about 70 lakhs, which is a little like micro niche और scalability के लिए कि आपको किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, because जब आप scale करते हो ना ad account को, ये scalability level वाले lessons थे. जब आप scale करते हो ad account को, so marketing message में micro niche ज़रूरी नहीं है काम आती है. और ये सारी मैं अपनी गलतियां करके ही मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम एक जीरो से स्टार्ट किया, एक लेवल तक लेके गए, तब माइक्रो नीश था तो रिजल्ट्स आए, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स आने बंद हो गए. तो हमने थोड़ा सा एक्सपैंड किया, एवेटार कॉल आउट कर रहे थे उसको हटाया, तो फिर और स्केलेबिलिटी हुई. स्केल हुआ तो फीचर पीछे ऑफर को फिर थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ा. जब ऑफर को ट्वीक करने की बारी आई, तब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आई कि परसेप्शन ऑफ वैल्यू होती है, देन फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यू होती है. वो भी जो बोलते हो सिर्फ वही नहीं, बट जो बोल रहे हो वो डिलीवर भी करना होता है. All these components of a business is what truly makes a business and advertising efforts successful. Yes, I'm going to see you in the next video. Bye. And yeah, that's it. Bye.